Hello and good morning to all my 11th standard students. I welcome you in the class of accounts. We are continuing with our final accounts chapter. In our today's e-class, we will start with question number 13 on page number 199. So, you all might be aware that trial balance has single effect, same side. Adjustments has dual effect, one debit, one credit. And all the debit balances of trial balance will appear on the debit side of trading account, profit and loss account, or balance sheet asset side. All the credit balances of trial balance will appear on the credit side of trading, credit side of P&L, or balance sheet liabilities side. So let us proceed. The following balances are taken from the books of Vipul as on 31/3/2015. Prepare final accounts. As our daily routine says, we are supposed to tick mark the adjustments first. Number 1. Stock of goods is rupees 1,50,000 at the end of the year, from which the market value of 50% goods is 80,000 and the market value of 50% goods is 70,000. That means ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट गिवन है. नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड. सेल्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है, सेल्स के ऊपर भी आएगा और साथ में डेटर्स के ऊपर भी आएगा. इज दिस क्लियर? कैलकुलेट 20% depreciation on furniture. Furniture is also there and additional furniture is also there, which we have bought in the mid of the year 1/10/2014. Life insurance premium of Vipul of 3,000 is included in insurance premium. था वो life insurance, that means that was drawings, but by mistake it is included in insurance premium. Fine. ड्राइंग्स के ऊपर भी टिक मार्क करेंगे एंड इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर भी. राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट 15,000 एंड प्रोवाइड बीडीआर ऑन डेटर्स. सो डबल टिक मार्क्स ऑन डेटर्स, एक बीडीआर का और एक बैड डेट्स का. Additional capital of 17,000 brought in the business as on 1/10/14. Calculate 10% interest on capital. 17,000 यहाँ पे जो ये excess given है, that is additional capital, वो हमारा mid of the year में आया है 1/10 को, यानी इसके लिए 17,000 के लिए 10% for 6 months होगा and remaining balance of 2 lakh 10% for the whole year. Next, invoice of 10,000 for purchase is received from creditor which is not recorded by an error. हमने परचेज किया है, उसका बिल हमको मिल गया है 10,000 का, जो बाय मिस्टेक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. परचेजेस पे आएगा एंड क्रेडिटर्स पे आएगा. इज दिस क्लियर? नाउ single effects of trial balance, you are very thorough with all these things. So single effects मैंने आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पे मैं दिखाने जा रहा हूँ वो डन है. सिंगल इफेक्ट्स और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं उनको मैंने इनर कॉलम में लिखा है एंड रेस्ट ऑफ दी आउटर कॉलम. दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. इवन प्रॉफिट एंड लॉस का भी डन है. एज यू कैन सी बैलेंस शीट इज ऑल्सो रेडी. जो सिंगल इफेक्ट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं. ट्रायल बैलेंस है सिंगल इफेक्ट, सेम साइड. एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट. सो लाइकवाइज आपके ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट्स डन है. नाउ लेट अस प्रोसीड विथ एडजस्टमेंट नंबर 1. Stock of goods 1,50,000 at the end of the year, from which market value of 50% goods is 80,000 and market value of 50% goods is 70,000. Now closing stock, let us concentrate in working. Your closing stock is of rupees 1,50,000, out of which 50% means 75,000 and rest of the 50% is also meaning of 75,000. 50% के गुड्स का वैल्यू कितना है? 80 है और बाकी का 70 है. दिस इज योर बुक वैल्यू
हेयर इज मार्केट वैल्यू, इसका 80,000 है, ये बुक वैल्यू है, यहां पर मार्केट वैल्यू इसका 70,000 है. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर. जो भी कम होता है, 75 और 80, 75, 75 और 70, 70. सो देयरफॉर 75,000 प्लस 70,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1,45,000. इज दिस क्लियर? दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक. नाउ क्लोजिंग स्टॉक के ड्यूअल इफेक्ट्स करने पड़ेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है. कहां कहां आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओके, यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000. वन मोर इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में करंट असेट्स की अंडर में क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000. Is this clear? Second adjustment is your credit sales of 60,000 not recorded. क्रेडिट सेल्स आपने रिकॉर्ड किए नहीं हैं. नहीं रिकॉर्ड किए हैं, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स में ऐड हो जाएगा प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000. हमारे सेल्स बढ़ गए. सेल्स बढ़ गए तो क्या होगा? साथ में हमारे डेटर्स भी बढ़ जाएंगे. डेटर्स हमारे हैं 1,40,000 के बैलेंस शीट असेट साइड, उसमें ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000 comes to 2 lakh. Is this okay? Now third adjustment, calculate 20% depreciation on furniture. 1,60,000 के ऊपर 20% फॉर द होल ईयर. एडिशनल जो फर्नीचर आपका 110 को आया है, 40,000 के ऊपर 20% फॉर 6 months. सो फर्नीचर इज 1,60,000 प्लस यहां पे दिखाएंगे एडिशनल फर्नीचर. एडिशनल फर्नीचर इज ऑफ 40,000 पर हमारा डेप्रिसिएशन दो अलग अलग बातों में कैलकुलेट होगा. 1,60,000 के ऊपर 10% 20% दैट विल कम टू 32,000 एंड 40,000 20% will make 8,000 but into 6 divided by 12 हमें करना है. That will be 4,000. So in all 32 plus 4 will make 36,000. Is this clear? 36,000 आपका यहां पर depreciation आएगा. Outer column will be 1,64,000. Fine. Second effect of your depreciation will be in profit and loss account to depreciation on furniture 36,000. Okay, moving further. Number 4, life insurance premium of Vipul 3,000 is included in insurance premium. था वो उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बट बाय मिस्टेक वो इंश्योरेंस प्रीमियम में चला गया है. इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे. हियर यू कैन सी इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट डेबिट साइड माइनस wrongly recorded life insurance premium of 3,000. So your outer column is 21,000. Fine. And one more that will be add into drawings. But overall drawings भी क्या होते हैं? डिडक्ट होते हैं. तो इसको भी हम क्या कर देंगे? माइनस ही कर देंगे. माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,000. Fine. Next adjustment. Fifth number, write off additional bad debt 15,000 and provide 5% BTR on debtors. Now, कितना है हमारा bad debts? 15,000. So over here, debtors में से ये माइनस हो जाएगा. debtors में से माइनस हो जाएगा यहाँ पे BD new. BD new is of 15,000. Okay, लेस करने पर
1,85,000 minus BDR new 5%, that is 9250, and your outer column will be 175750. Is this clear? Now format in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में BD/BDR का फॉर्मेट अभी आपको आ जाना चाहिए. कैन यू सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द स्क्रीन? ओके, इन दिस वी आर सपोज टू राइट BD old प्लस BD new प्लस BDR new. After one line, leaving one line, BDR old. Fine. So your BD old you will get it from trial balance, and your trial balance is 5,000. Okay. BD new is 15,000. BDR new is 9250, and the total will be 29,250. Less BDR old is 6,000, 23,250. Okay, so next adjustment number 6th. Additional capital 17,000 brought in business on 110. Calculate 10% interest on capital. अभी जो आपका 2 lakhs है कैपिटल, उसके ऊपर फॉर होल ईयर एंड फॉर 17,000 हाफ ईयर, प्लस additional of 17,000 plus interest on capital, that will be 20,850. कितना परसेंट आपको निकालना है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फाइन. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख के ऊपर 10%, that will be 20,000, and rest 17,000 का 10% into 6 divided by 12, that will amount to 20,850. Second effect will be in profit and loss account debit side. आप लिखेंगे to interest on capital 20,850. Next and the last one, invoice of 10,000 for purchases received from a creditor which is not recorded by an error. एक बिल हमें मिला है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है. 10,000 हमें रिकॉर्ड करना बाकी है. हमारे अनरिकॉर्डेड परचेजेस हैं, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, दैट इज ऑफ 10,000. Fine. And your outer column of purchase will be 306,000. अगर हमारे परचेजेस बढ़ गए तो हमारे क्रेडिटर्स भी उतने से बढ़ जाएंगे. हमारा करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस ऑफ 10,000, and your outer column will be 70,000. Fine. Now my dear students, in this question the trial balance is not prepared for you people, and they have asked to prepare trial balance. Indirectly they have asked, in question it is not mentioned. हमें क्या करना होगा? जो भी आपके डेबिट बैलेंसेस हैं उन्हें हमें डेबिट साइड लिखना है, एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस को टोटल करेंगे, एंड द टोटल ऑफ योर ट्रायल बैलेंस विल कम टू 1021,000. Total of trial balance. This I am not at all teaching you how you are supposed to prepare, just because पूरा trial balance का chapter हमने कर लिया है. So trial balance का total I am giving to you 10,21,000. Okay. Now हम इसमें से भी सम प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है. You people can proceed with trial balance first, and after trial balance आप सम को प्रोसीड कर सकते हैं. It's your will and wish. Moving further,
नाउ सम ऑफ दी हिडन एडजस्टमेंट्स आर देयर, जो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, उसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कैसे पहचाननी है, आई एम गोइंग टू टीच यू। सैलरी फॉर 11 मंथ्स, यहाँ पे ये एक हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरी जो हमने अभी तक चुकाई है, अभी तक हमने पे की है, दैट इज ऑफ 11 मंथ्स। 11 मंथ्स के हिसाब से कितना आ रहा है, 1,10,000। सो 1 मंथ के लिए निकाल देंगे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11, सो योर मंथली सैलरी इज ऑफ 10,000। कैन यू सी नाउ 10,000 के हिसाब से 11 मंथ्स का पे है, बट फाइनल अकाउंट्स तो ईयरली बनते हैं, दैट मीन्स हमारा 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी of 10,000. This is the indirect information given to you people. Now your second effect will be in balance sheet, current liabilities. In current liabilities, outstanding salary of 10,000. Okay, moving further और भी देखते हैं. Yes, it is there. 10% loan from bank. 10% लोन के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कितना आता है, जब हमने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है। 1 लाख इंटू 10% मेक्स 10,000, बट अभी तक हमने पेमेंट किया है सिर्फ 5,000 का, दैट मीन्स और 5,000 का हमारा इंटरेस्ट पेंडिंग है। हम इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 5,000। ये कौन सा वाला है, ट्रायल बैलेंस वाला, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000, सो टोटल मेक्स 10,000। नाउ ये जो ट्रायल बैलेंस वाला फिगर अपन ने उठाया है, इसको सिंगल इफेक्ट आएगा, बट ये जो 5,000 का एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, उसका हमें ड्यूअल इफेक्ट देना होगा, दैट विल बी इन योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग यहां पे भी आप दिखा सकते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जहां पे आपने लोन लिखा है उसी के साथ। आई एम सॉरी, दिस इज ऑफ 5,000, ओके, ये 1,05,000। Is this clear? This is 5,000, 1,05,000 outstanding interest. Moving further, next अपन का क्या given है, investment in 12% debentures। 1 लाख के हमारे इन्वेस्टमेंट्स डिबेंचर्स में किए हुए हैं, उसका 12% हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 12,000, और अभी तक कितना है 6,000, दैट मीन्स यस यू आर करेक्ट, और 6,000 इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है। डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, रिसीवेबल भी बोल सकते हो, आउटर कॉलम में 12,000। इसको आप दिखा देंगे यहां पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन debentures, how much, 6,000. Is this clear? Now after completing each and everything, जहां पे भी आपके outer columns pending है उन्हें हम बाहर निकालेंगे, and we will start doing the totallings. Total of trading account credit side is 8 lakhs, shifted on the debit side 8 lakhs minus all the debit side, it will give you gross profit, and your gross profit is 484,000. This will be transferred on credit side of profit and loss account by GP 484,000. नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा क्रेडिट साइड का ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and the total is 501,005 lakh 1,000. This will be transferred on the debit side minus all debit balances करेंगे, तो you will get net profit. Net profit is 239900. As it is net profit, हम क्या कर देंगे
कैपिटल में ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट 239900 and the outer column of capital will be 438,750. टोटल करेंगे अगर अपन लायबिलिटी साइड का देन इट इज 646,750. This should be the same total on asset side 646,750. Please check it out. Yes, it is there. आपका assets and liabilities both are similar 646,750. I hope question number 13 which I taught you right now is understood by you people, and now your today's task is question number 13 which we have done right now. Please repeat it again in your notebook. Thank you and have a nice day.